Okay, dear student, on the screen now the transaction is there. Enter the following transaction in the simple cash book of Messrs Saurabh Traders 2019 July 1st. So now the transaction is given here and date 1st July, started business with cash. First total transaction I am going to tell you theoretically, the effect, where the effect will come to the cash book and the columns of the cash book. In last lecture I told you there are 10 columns in the cash book. So the name of column, that is date, receipt number, LF, amount, date, payment, voucher number, LF and amount. So now these transactions, first total transaction means from July 1st to last transaction. First I will explain the effect of transaction theoretically, and then after that I will solve the same problem. The first transaction is started business with cash rupees 1 lakh. So I told you, whenever businessmen start the business and invested cash in that, introduce cash to start the business, it terms as a capital. So this business which businessmen started, in business cash comes, so the entry of this transaction, it will come to the receipt side, means debit side of the cash book. In particular we have to write to capital account, and in amount column we have to write 1 lakh. इसको कैपिटल लिखेंगे हम लोग क्योंकि कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा और हम उसको कैश वहाँ नहीं लिख सकते हैं। और सिंपल है कि जो भी कैश बिजनेस में यूज़ होता है वो कैपिटल बोलते हैं हम लोग। तो देयरफॉर वी हैव टू राइट कैपिटल debit side of the cash book, and in amount column we have to write 1 lakh rupees. And then 3rd July, deposited cash into bank. So the effect of deposited cash into bank, it will come to the payment side, means credit side of cash book. इसका इफेक्ट कैश बुक के क्रेडिट में होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बिजनेस से कैश जाएगा, इसके लिए कैश बुक के पेमेंट साइड में एंट्री होगी। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बिजनेसमैन कैश अपने बिजनेस से बैंक में लेके जा रहा है, बैंक में जमा कर रहा है वो, तो इसलिए कैश बुक की ये पेमेंट साइड में आएगा। सो वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन टू द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, and to the amount column we have to write 80,000. Then after that 5th July, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। परचेस आ गया तो फिर वहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने परचेस किया है, हमने ख़रीदा है, और ख़रीदा है इसका मतलब वहाँ पे पेमेंट हो रहा है। और एक बार कंफर्म हो गया कि दिस इज़ पेमेंट ट्रांजेक्शन, and then we have to make the effect of this to the payment side of cash book. So payment side we have to write by stationery account, and that is rupees 2000. Then after that 7th July, cash purchases rupees 15,000. So again there is purchases, means the effect of this transaction will go to the पेमेंट साइड, इसका भी इफेक्ट
हम लोग पेमेंट में करेंगे, पेमेंट साइड में इसकी एंट्री होगी और ये 15,000 अमाउंट कॉलम में लिखेंगे. दिस 15,000 वी हैव टू राइट इन अमाउंट कॉलम. इसमें आपको एक बात ध्यान देना है, सभी ट्रांजेक्शन में, इन एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव टू बी careful that either transaction is cash transaction or credit transaction. If the transaction is credit, then suppose we must not make the entry of credit transaction to the cash book. So while we read the transaction, we have to be careful about the nature of transaction, either this transaction is cash or credit, because we are preparing the cash book, and I told you in last lecture in theoretical part, if that is cash transaction, then the effect of that transaction will go to the cash book. Credit transaction, suppose we must not make the entry of that to the cash book. So after that, 8th July, sold goods for cash, rupees 20,000 at 8% trade discount. Here in this transaction, 8% trade discount is there, and we have to calculate 8% trade discount of 20,000. How we have to calculate the trade discount of 20,000? 20,000 multiplied by 8 divided by 100. So it will come 1,600. That 1,600 we have to less from 20,000, and the final amount will come 18,400. So while we make the effect, we have to make the effect of rupees 18,400. Here sold goods is there. Goods sold means goods को बेचा है. गुड्स को बेचा है तो कैश आ रहा है, कैश आएगा तो ये रिसिप्ट साइड में जाएगा. वी हैव टू मेक द इफेक्ट टू द रिसिप्ट साइड, मीन्स डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, and then after that in amount column we have to write the 18,400. मतलब अमाउंट कॉलम में लिखते समय ये ध्यान देना है कि we must not write this 20,000. Suppose we should not write the 20,000. Why? Because there is 8% trade discount. So we have to calculate 8% of 20,000, and after that the trade discount we have to deduct from the 20,000, and remaining amount we have to write in the amount column. Then 10th July, paid insurance premium. इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब आप लोगों को पता है. इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेसमैन जब विड्रॉ करता है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें प्रीमियम भरना पड़ता है. तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम ये पेड है, तो ये पेमेंट साइड में आएगा. पेड दिया है तो ये दिस इज इजी फॉर अस, वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी प्रॉपरली. देयर इज ए पेड. If paid word is there, then immediate we can think that this effect of this transaction, it will go to the payment side of cash book. One simple logic you have to put to your mind: if paid is there, then immediate we have to make the effect to the payment side. If received is there, or receipt is there, or if purchase is there, we have to make the effect. If receive and receipt is there, we have to make the effect to the debit side, and if purchase is there, we have to make the effect to the credit side.
So here paid insurance premium is there, so means here it is payment regarding insurance premium. So we have to make the effect to the payment side of cash book by insurance premium account, that is 5,000. In amount column we have to write the 5,000. Then on 12th July, paid cash to Dikshit. Again here paid is there, so paid word is there, so where we have to suppose make the effect of this transaction. Of course we have to make the effect of this transaction to the payment side of cash book. So payment side we have to write by Dikshit account, and in amount column we have to write 10,000. In amount column it will come 10,000. And then after that 15th July there is transaction received cash from Saxena rupees 80,000. So received is there. Received का मतलब होता है मिलना, कैश मिला, received कैश मतलब कैश मिला, पैसा आया, from Saxena, Saxena से पैसा मिला. So normal thing, there we have to make the effect of this transaction to the debit side of cash book. It means receipt side of cash book, and there we have to write to Saxena account, that is 80,000. In amount column we have to write the 80,000. Next on 17th July, received commission. received commission, फिर से यहाँ पे इसमें received word आया है. Again we have to make the effect of this transaction to the debit side of cash book, means receipt side of cash book, to commission account, and in amount column we have to write the 2,000 rupees. कमीशन का मतलब होता है दलाली, तो रिसीव्ड कमीशन रिसिप्ट साइड में टू कमीशन अकाउंट. एंड देन आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन नंबर 8, ट्रांजेक्शन ऑन 18th July, ड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज. ऑफ कोर्स whenever businessmen withdraw money from the business for self use, means domestic use, so what we say to that, that is drawing. डोमेस्टिक यूज के लिए मतलब सेल्फ इस्तेमाल के लिए, सेल्फ यूज के लिए उसको ड्राइंग बोलते हैं. तो वेयर सपोज वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस. देखो बिजनेसमैन ने ड्रॉ किया है, यहाँ पे समझना है. नॉर्मल बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो शार्प स्टूडेंट हैं वो उनको तुरंत पता चलेगा कि इसका इफेक्ट पेमेंट साइड में आएगा. लेकिन जो नॉर्मल है स्टूडेंट, वह थोड़ा सा उनके मन में यहाँ पे डाउट आ सकता है कि पेमेंट में आएगा तो भी कैसे आएगा, क्योंकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से विड्रॉ, मतलब यहाँ पे ये ध्यान देना है इसका वर्ड, ये नॉर्मली कमर्शियल वर्ड है. कमर्शियल वर्ड्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अकाउंटिंग वर्ड्स हैं. यहाँ पे ड्रीव लिखा है तो ड्रॉ मीन्स विड्रॉ, विड्रॉ किया मतलब निकाला है, पैसा निकाला है बिजनेस में से, तो वो पेमेंट साइड में आएगा. इट विल गो टू द पेमेंट साइड ऑफ कैश फ्लो. विड्रॉ, ड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज मीन्स विड्रॉ. ये विड्रॉ है तो मतलब पैसा निकाला है, पैसा निकाला है तो आपको ये यहाँ पे पेमेंट साइड में इसकी एंट्री होगी. एंड अमाउंट कॉलम वी हैव टू राइट 4,000 रुपीज़. तो पेमेंट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग लिखेंगे. यहाँ पे बाय डोमेस्टिक यूज नहीं लिखना है हमको, बिकॉज डोमेस्टिक यूज इज नॉट एनी अकाउंट. डोमेस्टिक यूज कोई अकाउंट नहीं होता है. तो यहाँ पे इसका जो कैरेक्टर है वो हम ड्राइंग को पकड़ते हैं, तो ये ड्राइंग में जाएगा. यहाँ पे ये ध्यान देना है,
बाकी सब जगह तो हम लोग को अकाउंट मिल जाता था। जैसे इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में कमीशन अकाउंट है, इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में सक्सेना अकाउंट है, उसके पहले वाले में दीक्षित है, उसके पहले में इंश्योरेंस प्रीमियम है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपको ये डोमेस्टिक यूज़ ये कोई अकाउंट नहीं होता है, इसका मतलब ड्राइंग होता है। तो हमको लिखते समय ड्राइंग अकाउंट ही लिखना है। तो पेमेंट साइड में यहाँ पे आएगा बाय ड्राइंग अकाउंट एंड इन अमाउंट कॉलम वी हैव टू राइट द 4000। उसके बाद में 22 जुलाई सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹5,000, 5,000 रुपया 5,000 का ओल्ड फर्नीचर बेचा है। तो ऑफकोर्स दिस विल कम टू द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, क्योंकि फर्नीचर बेचा हुआ है तो सेल करेंगे तो पैसा बिजनेस के पास आएगा, बिजनेसमैन के पास आएगा। सो वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन टू द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, and to the debit side we have to write to sales account, and in bracket we have to write the narration also being sold old furniture। देखो कैश बुक में आपको नरेशन लिखना है, और नरेशन आपको हम लोग सॉल्व करते समय नहीं लिखते हैं। जब हम आपको सॉल्व करते हैं, जब हम सॉल्व करके बताते हैं तो वहाँ पे हम लोग नरेशन नहीं लिखते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, यू हैव टू राइट द नरेशन, नीचे लिखना है आपको बीइंग फर्नीचर सोल्ड, आपको वो लिखना है। लेकिन इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये रूल, लेकिन फिर भी लिखना ही है, ये मान के चलो आप। तो ये से सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में ये आएगा इसका इफेक्ट। और उसके बाद में 25 जुलाई को ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू राम। सैलरी का मतलब होता है पगार दिया बिजनेसमैन ने या फर्म ने पगार दिया, तो ये पेड है। तो आपको द इफेक्ट ऑफ दिस, इसका इफेक्ट भी कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन में दिया गया है पेड है, ये पेड है तो पेमेंट साइड में जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड से ही आपको पता लगा लेना है, एक वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। तो आपको उस पेमेंट साइड में हम लोग लिखेंगे, बिजनेसमैन लिखेगा बाय सैलरी अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम में 6,000। आपको उस नरेशन आप लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू राम, लाइक दैट वी हैव टू राइट द नरेशन। उसके बाद में है 30 जुलाई का ट्रांजेक्शन रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड है तो आपको यहाँ पे हमको हिंट मिल गया है क्लियरली, रिसीव्ड मीन्स इट विल कम टू द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड मीन्स डेबिट साइड, एंड हाउ वी हैव टू राइट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एंड इन अमाउंट कॉलम वी हैव टू राइट 4,000 रुपीज़। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को सारे ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी हैव टू बी मोर अलर्ट टू नो द कैरेक्टर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आइदर दैट ट्रांजेक्शन इज कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन है इसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच में दो एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रहता है, और बच्चे लोग जो स्टूडेंट हैं वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की भी एंट्री कैश बुक में मार देते हैं, तो कैश बुक रॉन्ग हो जाता है, बैलेंसिंग फिगर रॉन्ग आता है। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इन अकाउंट्स वन थिंग इज वेरी गुड दैट we are getting marks on each and every single effect। अगर आपने सारे जो ट्रांजेक्शन है सभी ट्रांजेक्शन को आपने करेक्ट किया है तो सभी ट्रांजेक्शन पे आपको जो मार्क्स अलॉटेड है वो स्टेप वाइज मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका एक ट्रांजेक्शन रॉन्ग हो गया तो पूरा का पूरा अकाउंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। इसके लिए आपको ज़्यादा बॉदरेशन की ज़रूरत नहीं है, यू नो नीड टू बॉदर मोर। इफ़ देयर इज़
any one transaction you make the wrong effect of that, so the total sum, the total problem is going to be wrong. It is not like that. Only that particular transactions will be treated wrong, and the only 1 marks or half marks will be deducted, and remaining marks you will get. So this is quite good in the BK. The marking system is same as in maths. So, but we must not lose even 1 marks to make wrong effect in the cash book. तो इसके लिए सभी टोटल ट्रांजेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम एंड यू हैव टू प्लीज़ पुट योर केयर ऑन दैट. सबसे पहले हम लोगों को याद रहना चाहिए कि इसमें कितने जो कॉलम्स हैं. वी मस्ट नॉट फॉरगेट द नेम ऑफ कॉलम्स. अगर नेम ऑफ कॉलम्स रॉन्ग रहेगा तो फिर हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो रॉन्ग हो जाएगा. So for that we have to be cautious about the name of columns. रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हम लोगों ने डेट का कॉलम बनाना है. डेट का कॉलम होने के बाद में फिर रिसिप्ट का कॉलम आता है. रिसिप्ट का कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि सारे पर्टिकुलर्स हम लोग रिसिप्ट के कॉलम में लिखते हैं. देन आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर द रिसिप्ट नंबर कॉलम, and then after that we have to prepare the LF column, and then after that amount column. Then again there will be date column for the payment side, and then there will be column for payment, and then payment voucher number, and then LF number. Now we have to write the name of column. The first column it is date, second is the receipt, third is the RT number, that is receipt number, then LF, and then amount, then again date, and after that payment, then voucher number, that is V number, LF, and the amount. And title we have to write simple cash book. Simple cash book. And here we have to write in the books of in the
So like that we have to write the title here in the books of Messrs Saurabh Traders simple cash book, and then now we have to start the effect. First transaction is there, started business with cash. So receipt side, as I told you earlier, when the businessmen start business and introduce cash to that we have to treat capital. So the effect of that we have to make to the receipt side. Here we have to write the year 2019 and then July 1st to capital account. Here I am not writing the narration. You have to write the narration while you solve the problem. Narration लिखते समय इसके नीचे below to this we have to write being business started like that, but here I am not writing that. ये आपका होमवर्क है, जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको नरेशन नीचे लिखते जाने का है. So in receipt number we have to put dash, in LF also we have to put dash, and in amount column we have to write 1 lakh rupees. अगर आप डैश नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है. तो ये हो गया इफेक्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन का. उसके बाद में है सेकेंड ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. डिपॉजिट है, ये कैश बैंक में डिपॉजिट किया है. तो द इफेक्ट ऑफ दिस इट विल गो टू द पेमेंट साइड. पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड होता है. तो यहाँ पे फिर डेट कॉलम में 2019 एंड जुलाई 3rd. एंड पेमेंट साइड जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमेशा बाय लिखना है आपको. अगर पेमेंट है तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट द अमाउंट विल कम 80,000. नरेशन नीचे लिखना है बीइंग डिपॉजिटेड टू बैंक लाइक दैट. मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि आपको लिखना है. यहाँ पे सभी लोगों को नरेशन नीचे लिखना है. मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के आपको बता दे रहा हूँ. बीइंग लाइक दैट, बीइंग डिपॉजिटेड टू बैंक हो गया. ऐसा ब्रैकेट में सबके नीचे नरेशन लिखना है. तो ये 80,000 हो गया. उसके बाद में ट्रांजेक्शन नंबर 3rd, दैट इज ऑन 5th July, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश. So this is purchase, so effect of this it will go to the payment side, 5th by stationery account. And in amount column it will come 2,000 rupees. नरेशन नीचे लिखना होगा, ये आप करेंगे या नरेशन आप लिखेंगे. सिंपल है, बीइंग स्टेशनरी परचेस लाइक दैट. उसके बाद में है 7th को कैश परचेसेस. इसका भी इफेक्ट आपको पेमेंट साइड में आएगा. 7th बाय परचेसेस अकाउंट. अमाउंट कॉलम में 15,000. And then after that 8th July, sold goods for cash 20,000 at 8% trade discount. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 8% 20,000 पे कैलकुलेट करेंगे. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100. उसके बाद सिंप्लीफाई करके आएगा 1,600. फिर 20,000 में से 1,600 आपको माइनस करना है, तो इट विल कम 18,400. तो
तो सोल्ड है तो ये रिसिप्ट साइड में आएगा। रिसिप्ट साइड में डेट डालना है आपको जुलाई 8 को टू सेल्स अकाउंट। In amount column we have to write 18,400. उसके बाद में 10 तारीख को 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पेमेंट साइड में 10th जुलाई बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और अमाउंट कॉलम में 5,000 आएगा। फिर उसके बाद में पेड कैश टू दीक्षित दैट इज ऑन 12th। ये पेड है तो ये आएगा आपका पेमेंट साइड में। डेट डालेंगे 12th जुलाई। बाय दीक्षित अकाउंट। और अमाउंट में आएगा 10,000 रुपीज़। नरेशन सबके नीचे आपको लिखना है। उसके बाद में है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना। तो ये रिसीव्ड है तो इसका इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे? ऑफकोर्स रिसीव्ड साइड में आएगा इसका इफेक्ट। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना तो क्या लिखेंगे रिसीव्ड साइड में? कैश बुक में कैश का नाम तो लिखना नहीं है, तो यहाँ पे आएगा टू सक्सेना अकाउंट। डेट लिखना है दैट इज ऑन 15th। Saxena account, that is in amount column we have to write the 80,000. Not 18, 80,000, sorry. 80,000. And then on 17th July received commission. So the effect of commission we have to write to the receipt side because commission is being received. So the effect of this, it will come to the debit side. This receipt side is the debit side. So here we have to write the date 17, that is to commission account. And in on column we have to write 2,000 rupees. And then on 18th July, 18th July the transaction is draw from domestic draw for domestic use. Earlier I explained you things very properly. There is domestic purpose, means businessmen withdraw the money for domestic purpose. So we have to treat this as a drawing. It is called being drawing. So when businessmen withdraw money, so means money goes out from the business. So the effect of this, it will come to the cash book payment side. So here we have to write the date, that is 18th
by drawing account. And amount column, it will come 4,000 rupees. And then after that, on 22nd July, sold old furniture. सोल्ड किया है, बेचा है, तो पैसा आ रहा है बिजनेस में, कैश कम्स इन, तो कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक के रिसीप्ट साइड में इसकी एंट्री होगी, तो कैश बुक के रिसीप्ट साइड में इसका एंट्री आएगा, तो रिसीप्ट साइड में हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। पहले डेट डालेंगे यहाँ पे 22 टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 5000। सबके नीचे नरेशन हमको लिखना है, यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सक्सेना, बीइंग रिसीव्ड कमीशन, और ये यहाँ पे इसका भी नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड फर्नीचर लाइक दैट। और फिर 22 के बाद में 25 जुलाई को ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू राम, तो पेड है तो पेमेंट साइड में आएगा, पेमेंट साइड में हम लोग डेट लिखेंगे, तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे आएगा बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट में आएगा 6000। और फिर उसके बाद में 30 जुलाई को रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4000 रिसीव्ड है, रिसिप्ट है, ये रिसीव्ड मतलब पाया, मिला, तो अफकोर्स द इफेक्ट ऑफ दिस इट विल गो टू द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ये रिसिप्ट साइड है जो कि हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे डेट हमको लिखना है 30 टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में आएगा 4000। तो डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में टोटल अमाउंट कौन कौन से हैं? 1 लाख है, 18,400 है, 80,000 है, और ये 2,000 है, 5,000 है और 4,000 है। तो अब हम लोग जो है टैली करेंगे कैश बुक को। कैश बुक को टैली करते समय 1-2 लाइन छोड़ के नीचे हम लोग ने टैली कॉलम बनाना है, और मैंने आपको बताया टैली कॉलम का जो नीचे वाला सेकेंड लाइन होता है उसको डबल लाइन करने का, दोनों साइड ये टैली कॉलम को बनाना है, और नीचे वाली लाइन को डबल लाइन ड्रॉ करना है वहाँ पे। अब ये कैश बुक में मैंने अर्लियर लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैश बुक हम जब टैली करेंगे तो हमारा जो रिसिप्ट साइड है वो ज़्यादा आएगा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, वही टोटल नॉर्मली हम लोग पहले लेंगे। तो ये जब टोटल हम लोग करेंगे दिस टोटल, तो इसका टोटल आएगा 2,09,400। और यही सेम टोटल हम लोग पेमेंट साइड में लिखते हैं 2,09,400। और अब यहाँ पे हमारे पास में ये 80,000 पेमेंट साइड में, 2,000, 15,000, 5,000
और फिर 10,000, 4,000 और 6,000, ये सब का टोटल करेंगे। यहाँ 80,000 से लेके 6,000 को टोटल करेंगे। जितना ये टोटल आएगा उस टोटल को ये फाइनल टोटल में से माइनस करेंगे। इस टोटल मतलब 2,09,400 में से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद में हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो 87,400 आएगा। और इसको हम लोग, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो इसको लिखते हैं बाय बैलेंस CD। और यहाँ पे आएगा लास्ट डेट आएगा इसका जुलाई का 31। और फिर से ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको डेबिट में ट्रांसफ़र करना रहता है। तो जुलाई के बाद में यहाँ पे अगस्त आएगा, अगस्त यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD। और ये सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 87,400। ये अमाउंट जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग में लाके हमको रखना रहता है। जब लास्ट में हम कैश बुक टैली करते हैं, जब कैश बुक टैली होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं ओपनिंग बैलेंस में। तो ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, जब क्लोजिंग बैलेंस रहता है तो वहाँ पे CD लिखना है और जब ओपनिंग बैलेंस है तो वहाँ पे BD लिखना है। ये आपको ध्यान देना है। इट्स ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सम न्यू ट्रांजेक्शन।